Hello students, today's topic is dielectrics. And what is a dielectrics? Dielectric means it is an insulator. It is an insulator. Insulator means already you know that. So conductor means in that material more free electrons will be there. Take, and insulator means जिसमें फ्री चार्जेस नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर. ओके. एंड वन मोर इज सेमीकंडक्टर, उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, कुछ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होगा. लेकिन व्हाट इज इंसुलेटर मींस इसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा लेकिन 99% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी बॉन्डेड. ओके. दे आर नॉट फ्री टू मूव. ठीक है. Means if they are able to move freely, that is said to be conductor. Okay, what is a conductor means here in which materials electrons are moved to free, that is called as a conductor. And what is the insulator means in which materials electrons are bounded, that is called as a insulator. Take, this is the insulator definition. Take, what is the insulator? Insulator means in which material electrons are bounded, that is called as what we can say the insulator, we can say that. Okay. Now we are using this insulator as a dielectrics. Okay, dielectrics. Now we will be using the what is the dielectrics and what is the dielectric constant. We will be using the one by one. Take. So in this first, what I mean here I am taking one external electric field. I have taken the external electric field. So malana E naught. It is the external electric field, na? External electric field. ठीक, हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उसके अंदर हम क्या करें, एक कंडक्टर को रखें. I kept one conductor inside this electric field. Clear? What I did, I have taken the one external electric field. In that external electric field, I have kept one conductor. Now, क्या होगा? So what will happen if we keep any conductor in an electric field, external electric field? What happens? This concept I have explained in the second chapter as well as third chapter. Also explained the properties of the conductor. कोई सा भी conductor को आप external electric field के अंदर रखेगा तो क्या होगा? पहले charges induced होगा. अब देखिए this is the external electric field. External electric field and this is the एक neutral conductor रखा था. Neutral conductor in the sense है इसके अंदर positive charges भी होगा, negative charges भी होगा. ठीक है. अब electric field क्या करेंगे? Electric field हमेशा ये करेंगे positive charges को अपने साथ लेके जाने के लिए. That means positive charges इसी तरफ करता होगा. ठीक. Got my point? Conductor के अंदर positive charge भी होगा, negative charge भी होगा. ठीक. लेकिन ये कंडक्टर हमने कहाँ रखा? हम रखा था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में. इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा तो ये क्या करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस में फोर्स अप्लाई करेंगे. लेकिन दो तरफ टू टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, अपने साथ लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे. दैट्स व्हाई पॉजिटिव चार्जेस इसी तरफ कटा होगा एंड नेगेटिव चार्जेस विल बी मूव दिस साइड. ठीक. एंड इसी चार्जेस को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्जेस. ठीक. अब इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाएगा. तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है राइट साइड. अब देखिए ना, सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से नॉर्मली तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से पॉजिटिव से नेगेटिव चाहिए. गॉट माय पॉइंट? So electric field is moving from the positive charge to the negative charge. And induced charges these are positive and negative. Of induced electric field, I said induced electric field. Left side of this is the induced electric field EI. What I am writing here, induced electric field EI. Now, so हमने आप लोगों को एक ऐसे एक कंडक्टर के लिए प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया था. एक्सटर्नल फील्ड इतना है. सपोज मान लेना, so 10 न्यूटन पर कूलम. So E naught is equal to 10 न्यूटन पर कूलम. ठीक. E naught. अब क्या करेंगे, धीरे धीरे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा. ऐसे एक सिचुएशन आएगा
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर होगा, लेकिन एक तो राइट साइड से आ रही, एक तो लेफ्ट साइड में जा रही, एंड दिस बोथ ऑफ द वेक्टर्स मींस नेट वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो दैट वन आई टोल्ड, कोई से भी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर रखेगा तो ओके, inside that conductor charges are they themselves are arranged themselves such a fashion, net electric field is 0, net electric field is 0, that's what I explained in the second chapter as well as the third chapter। ठीक, इसमें भी क्या होगा, हमने क्या क्या किया था, हम एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, अंदर रखने के बाद क्या होगा, इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस होगा, इसी इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। वही मींस है इसमें मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, ओके, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो कंडक्टर में, इसी वजह से क्या होगा, ऐसे ऐसे इंक्रीज होगा। एंड नेक्स्ट फाइंड आउट करें, ई नेट इज इक्वल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई इज इक्वल टू कितना है, 0 आएगा। दैट वन लाइक ई नेट इज इक्वल टू, ठीक है। अब कोई सा भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेगा तो, ठीक, अंदर रखेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ई नेट इज इक्वल टू 0 है, ठीक। क्या आप याद करना है, ई नेट इज इक्वल टू 0 कब है, व्हेन यू कीप कंडक्टर इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दिस केस ई नेट इज इक्वल टू कितना है, 0। याद कर लेना, ई नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ई नेट इज इक्वल टू E net is equal to E naught minus E is equal to 0, ठीक, ये नोट कर लेना। इसके बाद तो कंडक्टर रखेगा तो क्या होगा, ये होगा, कंडक्टर रखेगा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई सा भी कंडक्टर रखेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अरे 0 आएगा, ठीक। वही मींस उसी कंडक्टर के पास उतना ताकत होगा, ऐसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा के धीरे धीरे ये वैल्यू एक सिचुएशन में दोनों बराबर होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज़ ऑफ दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, दूसरा केस हम ऐसे ले रहे हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, अगर हमने क्या लिया था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लिया था, इसके अंदर हम एक इंसुलेटर में उसको बोलेंगे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ना, क्या रखें, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में हमने बोला था, so that is a insulator only, okay, that is what insulator means in which material electrons are bonded, okay, electrons are not to move freely, इसको हम बोलेंगे means electrons are bonded with the nucleus, that means electrons they can't move freely, okay, so electrons freely नहीं move कर पाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, insulator, okay। हम मींस डाइइलेक्ट्रिक मींस it is a insulator, ठीक। हमने लिया था, हम कहाँ रखा था, हमने रखा था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था। पहले केस में क्या किया था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर रखा था, हम देखा था कंडक्टर रख के हम देखा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर्स। सो पहले क्लासेस में हमने एक्सप्लेन किया था, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक। अब इसमें दूसरा केस में सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिया था, इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक इंसुलेटर रखते हैं, ठीक है। इंसुलेटर मतलब इसमें ज्यादा फ्री चार्जेस नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा फ्री चार्जेस नहीं होगा, ठीक। हम ऐसा रखने के बाद क्या होगा, इसमें भी चार्जेस इंड्यूस होगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को अपने अनुसार पकड़ के जाने की कोशिश करेंगे, इसी वजह से तरफ हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, एंड इसी तरफ क्या आएगा, नेगेटिव। तो चार्जेस तो इंड्यूस होगा तो इसमें भी क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EI, लेकिन इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर नहीं होगा, वही मींस है इसी मटेरियल में उतना ताकत नहीं होगा, मींस ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इसी वजह से सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इक्वल, okay, it is not possible equal bond, that it happens in the case of the conductors only, not in the case of the insulators। insulator के केस में external electric field and induced electric field दोनों बराबर नहीं होगा। E net find out करेगा, E net is equal to आप देख सकते हैं E naught, that is the external electric field minus induced, ठीक है। लेकिन ये तो 0 नहीं होगा, समझ में आ रहे हैं,
पहले हमने एक्सप्लेन किया कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के केस में क्या हो रहा था, ए जीरो, इन द केस ऑफ कंडक्टर इट वाज जीरो, ठीक है। नाउ इन दिस केस वी कैन से E net is equal to E naught minus E, दैट मींस कुछ वैल्यू तो बचेगा, कुछ वैल्यू से बचेगा, ठीक है, कुछ वैल्यू तो बचेगा। लेकिन अब एक चीज आपको दिमाग में आना चाहिए, एक चीज आपको दिमाग में आना चाहिए। सो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E naught, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E naught। अभी इसी इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या इंसर्ट किया था, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या इंसर्ट किया था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इंसुलेटर को हम रखा था। इंसुलेटर रखने के बाद क्या हुआ, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, पहले कहता था E naught था, अब E naught माइनस समथिंग, दैट मींस कुछ वैल्यू तो घट रहा है, ठीक है, गॉट माय पॉइंट। सो ये पॉइंट अब याद करना पड़ेगा। ये कोई सा भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप रखेगा, तो पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेगा, तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज मान लेना 6 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये रखने के बाद 6 नहीं होगा, 6 से कम होगा, इसमें भी 5 4 टिक, दैट मींस कुछ वैल्यू घट रही है, ये पॉइंट यू ऑर्डर में होता है, हां, ओके। कोई से भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेगा, तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी घटेगा, ठीक, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक। This that's what dielectric material, but in this case we have to see that what is the dielectric constant also, we have to see that what is the dielectric constant। अब देखना तो dielectric material ना, अभी dielectric material I explain what is the dielectric material and उसके बाद I what is the dielectric constant। अब हम explain करेंगे what is the dielectric constant। dielectric constant डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको हम डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, अब देख लेंगे व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस, कितना फैक्टर से इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहे हैं, उसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सपोज मान लें पहले सपोज से 10 न्यूटन पर कूलम था, ठीक, पहले इनिशियल वैल्यू कितना था, 10 मीटर पर कूलम था। अभी इसी के दैट मींस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने के बाद ये वैल्यू है 2 न्यूटन पर कूलम, दैट मींस कितना फैक्टर से घट रहे, 5 से। अब देखना ना 5 मींस 10 by 5 इज इक्वल कितना है, 2 आएगा, 10 by 5 इज इक्वल कितना है, 2 आएगा, दैट मींस that is E naught upon K, E naught upon K को बराबर E net is equal to E naught minus E is equal to E net upon K। So this is what I told you, A value बराबर, A value किसको बराबर है, E naught minus A, that is E net के लिए। लेकिन E net means यार पहले 10 था, अभी 2 हो गए, that means कितना फैक्टर से घट रहे हैं, कितना फैक्टर मींस घट रहे हैं, मिस कितना फैक्टर्स है, उसी फैक्टर को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ कैसे E net is equal to E naught upon K, ठीक है, व्हाट है E net is equal to E naught upon K, E naught upon K किसको बराबर है, E naught minus EA, ऑलरेडी हमने ये लिखा था E net is equal to E naught minus EA, ठीक। अगेन ये वैल्यू E net किसको बराबर होगा, E net means इनिशियल वैल्यू दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ फैक्टर्स से घटेगा, हम इसको ऐसे मान के जा रहे, के से मान के जा रहे, सब लोग ऐसे मान के जाएंगे, हम भी ऐसे मान के जाएंगे कैसे, ठीक। अब इससे आप डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। सो E net is equal to E naught upon K, हमको कैसे K चाहिए, K is equal to E naught upon E net, इसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, the ratio between external electric field to E net, इसको हम बोलेंगे ये दोनों का रेशियो। E net कैसा आ गया, E net कैसा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करेंगे तो E net आएगा। अब इधर का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो K is equal to E naught upon E net, ये देख लें, पहले तो E naught था एंड ये तो नेट वैल्यू, E net वैल्यू, अब ये तो हमको K
है के कैसे आएगा, के आएगा ई नॉट का क्या है, ठीक। और उसके बाद मतलब ई नॉट इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5, के इज इक्वल टू 5 है ए वेलोसिटी, ठीक। हम इतना ध्यान देना है, कोई सा भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल के फील्ड अंदर रखने के बाद ए वैल्यू घट रही है, लेकिन कितना फैक्टर से घट रही है उसी फैक्टर को, ओके, कितना फैक्टर से ये घट रहे हैं उसी फैक्टर को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। नहीं तो आपसे ये डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। सो ये डेफिनेशन आप बता सकता है, क्या क्या डेफिनेशन बता सकते हैं, द रेशियो बिटवीन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू ई नेट, ई नेट अलग है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल मींस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इज ई नॉट, इनिशियल वैल्यू इज ई नेट, and sorry initial value is e naught, and e net means इधर माइनस करने के बाद e net आ रहा है। अब इधर को रेशियो फाइंड आउट करते हो, इनिशियल वैल्यू मींस इनिशियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और e net के लिए हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, एक फैक्टर आएगा, उसी फैक्टर को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज व्हाट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नॉट ओनली दिस डेफिनेशन, एक आपको बुक में एक और डेफिनेशन भी होगा, एक और डेफिनेशन जैसे k is equal to C is equal to अब लिख सकते हैं k c naught, अब k is equal to c upon c naught, ये फॉर्मूला मैंने देखा था ना, ये हम पहले क्लासेस में आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, c is equal to k multiply c naught, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से भी आप डेफिनेशन बता सकते हैं, k is equal to c upon c naught, व्हाट इज द k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन यहाँ से भी वैसे विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो आप बता सकते हैं, एंड विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में आप बता सकते हैं। इसको आप डेफिनेशन बताएगा तो c naught मतलब कब मींस c naught मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द c naught है, c naught मतलब दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन बिटवीन द plates air is occupied, okay, completely filled with the air or as vacuum, दोनों को प्लेट्स के बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको सिलेबस में है ना, दोनों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन कंप्लीटली पूरा एयर फिल होगा तो उसी केस में सी नॉट, एंड सी मींस कोई सा भी एक मटेरियल इंसर्ट किया था, कोई सा भी डायरेक्ट मटेरियल को अपने कंप्लीटली इंसर्ट किया था, उसी केस सी आएगा। नाउ द रेशियो बिटवीन, ओके सो द रेशियो बिटवीन कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर व्हेन between the plates, okay, means between the plates and dielectric metal is filled completely between the plates, ठीक है। अब देखना ऐसे हमने प्लेट कैपेसिटर लिया था, ये तो ये कंप्लीटली फिल होगा किससे, एक मेटल, दैट इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन between the plates completely dielectric material is inserted, completely filled by the dielectric material, okay, the space between the plates, okay, completely filled by the dielectric material, in that case capacitance कितना होगा c होगा, and c naught means capacitance of the same capacitor when between the plates completely space occupied with air, नहीं तो vacuum, तो दोनों का रेशियो कंट्रोल फिर भी आप डेफिनेशन बता सकते हैं, that is also what dielectric constant only, that is a dielectric constant, ठीक। आगे दो डेफिनेशन किए, but what is the use of the dielectric? now dielectric को इंसर्ट करने के लिए जरूरत है, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के लिए जरूरत है ना, व्हाट आर द यूजेस, नाउ ओके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, तीन मेन यूजेस। अब डाइलेक्ट्रिक को यूज करने के लिए जरूरत क्या है, कैपेसिटर्स में पैरेलल कैपेसिटर में फाइंड आउट कर रहे हैं, कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन ये तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के लिए जरूरत क्या है, अब देखो नॉर्मल है, सो पैरेलल कैपेसिटर मींस ऐसा होगा, एक में प्लस क्यू होगा, दूसरे में माइनस चार्ज प्लस और माइनस होगा, तो ये दोनों विल बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, ठीक। अब देखेंगे तो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, हम ऐसे छोड़ेगा तो अब ऐसे
पास में आ सकता है, पास में एक चपक दोनों क्या होगा, एक ऐसे दोनों पास में आके क्या होगा, चपक जाए। ठीक है, अब ऐसे चपक जाएगा तो ये चार्ज जैसा न्यूट्रल हो जाएगा, देन आप लोगों को कैपेसिटेंस नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, उससे कंडक्टर का कैपेसिटेंस नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, हम इसको हम रोकने के लिए ये दोनों को बिटवीन पूछना है, बताओ दोनों को बिटवीन पूछना है। ऐसा हमने क्या बोला था, दो प्लेट्स लिया था, दो प्लेट्स में एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा प्लेट में नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, हम ऐसा छोड़ेंगे तो अपने आप क्या करेंगे, आप पास में क्या चपक जाएगा तो प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा तो आपको चार्ज नहीं होगा तो कैपेसिटेंस कहाँ से आएगा। ठीक है, अब देखना ना, इसमें कैपेसिटेंस उसी कंडक्टर कैपेसिटेंस से वी नॉट एबल टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस फॉर दैट कंडक्टर। ठीक है, अब रियलिटी में क्या होगा, मतलब सपोज ऐसा नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेंगे, कोई सब देखिए मान लेना ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो एक तरफ एक प्लेट होना है, दूसरा प्लेट होना चाहिए ना, बटोला नहीं ना, पॉजिटिव प्लेट ये तो पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट है, एंड बिटवीन क्या होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, रिएक्टिव में अलग अलग नहीं, वो लोग क्या करेंगे, अब कोई सा भी डायरेक्ट मटेरियल दे विल टेक। ठीक है, आफ्टर व्हाट दे डू, एक तरफ एक मेटल कोटिंग एंड दूसरा तरफ भी दूसरा मेटल कोटिंग करता है। मेटल कोटिंग दे डू द मेटल कोटिंग ऑन द बोथ साइड्स। नाउ ये मेटल कोटिंग क्या करेंगे, ये प्लेट जैसे एक्ट करेंगे, दैट इज द फर्स्ट यूज मींस है it support the system. Dielectric, what is the use of the dielectric material means what it does do means it supports the system. ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो ये प्लेट्स क्या करेंगे, अपने आप चपक जाएगा तो means we can't find out the capacitance of that conductor. ठीक, लेकिन रियलिटी में वो लोग कैसे बनाएंगे कैपेसिटर, मतलब कोई सा भी ऐसे हमने लिया था मान लें तो इंसुलेटर। ठीक है, मान लें इंसुलेटर इसी तरफ एक कोटिंग मेटल कोटिंग एंड अदर साइड आल्सो मेटल कोटिंग, और ये इसी तरफ भी मेटल कोटिंग एंड इसी तरफ मेटल कोटिंग, एंड बीच में क्या है, कंप्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मेटल। इन बिटवीन व्हाट इज देयर, कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मेटल इज देयर। क्या डाइलेक्ट्रिक मेटल, एंड इसी तरफ क्या करेंगे, मेटल से मेटल कोटिंग कर रहे हैं। अब ये मेटल कोटिंग क्या करेंगे, प्लेट जैसा एक्ट करेंगे, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव जैसे एक्ट करेंगे। ठीक, ऐसा होता है। सर दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द फर्स्ट यूज? फर्स्ट यूज यू कैन हियर इट्स सपोर्ट। द फर्स्ट पॉइंट यू कैन फर्स्ट पॉइंट यू कैन डायरेक्ट्रिक मटेरियल। फर्स्ट पॉइंट यू कैन डाइलेक्ट्रिक material provides support to the system take it, otherwise plates also can say system is plates only. That's the first point. You got my point? You understood? Sir, what I am explaining is sir, अब what is the use of the dielectric means sir, हम already कैपेसिटर मींस पैरेलल कैपेसिटर यूज मींस हमने एक्सप्लेन किया था आप लोगों का। पहले हमने बताया था what is the use, हम दो केस देखा था, बिना इंसर्ट करके, that means without inserting dielectric field, dielectric material, you got the capacitance, and after inserting also you got the capacitance of the parallel capacitor। दोनों केस हम देखा था। लेकिन ये इंसर्ट करेगा तो फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। फायदा होगा तो यूज करना है, फायदा नहीं है तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना। सो फायदा हो रहा है, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्ट मटेरियल को यूज कर रहे हैं इन बिटवीन द प्लेट्स। क्या क्या फायदा हो रहा है, पहले पॉइंट देखिए ना, अब दोनों का प्लेट्स के बिटवीन मान लें केवल प्लेट्स है, दोनों का बिटवीन केवल प्लेट्स है और कुछ भी मटेरियल नहीं, एक तो पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव हो तो ये आपस में आके चिपक जाएगा, चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, कोई
मतलब नहीं, that means that no use. That's why dielectric material provides support to the system. That's the first point. And second point already आप लोगों को मैंने explain किया था. कैसे explain किया था देखना. तो पहले ट्रैक के पास में दो केस आप लोगों को explain किया था. एक C naught explain किया था. C naught is equal to C naught भी explain किया था and दूसरा C भी explain किया था. C naught means है. Okay, C naught means there is capacitance of parallel plate capacitor when between the plates completely filled by air. C naught. And C means between the plates between completely area will be filled by the some dielectric material. ठीक है. अब ये दोनों का रिलेशन ऊपर है. C is equal to some K multiplied C naught. Some K multiplied C naught. ठीक. अब देखना कौन सा वैल्यू बढ़ेगा. C naught before inserting the dielectric material and C is after inserting the dielectric material. हमारा suppose में K times ज़्यादा. Suppose ये पहले suppose this equal to माना 5 माना and C are K times K गुना है. That means that means what is happening here? It is increasing the capacitance. Okay, it is increasing. What it is doing? It is increasing the. Suppose you are inserting the any dielectric material, जिसका dielectric constant is equal to K. पहले से कितना गुना बढ़ रहा है? K गुना बढ़ रहा है. उनका capacitance क्या बढ़ रहा है? K गुना. This what I explained in the previous class. So that means the second point of this होता है due to insertion of second point is right due to insertion of dielectric material capacitance increases. ठीक है. these are the 2 years and एक और is there. So in next concept like normally ये तीसरा use आपका syllabus में नहीं है, फिर भी हम explain करेंगे. पहले नोट कर लेना अच्छे से. ठीक. So